Hello students, hope all of you are well. So today we will start with our next topic, that is the congruence and some related problem. This topic is very important for the syllabus. You can expect at least 2 questions from this topic carrying 5 marks. More questions may also appear. This topic is not only important for the semester. From this topic generally so many problems appear in the GATE exam as well as in the competitive exam like the TCS, CTS, etc. So let us start. So first, before we go to the congruence, let us finish a small thing that we have started in the previous video lecture, that is the greatest common divisor. So as the greatest common divisor we have a least common multiple. तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल को हम लोग कहते हैं एलसीएम. तो एलसीएम का मतलब क्या है? A and B, if we choose any two positive integer, then the smallest positive integer that is divisible by both A and B is nothing but the LCM of A and B. Okay? तो यहाँ पे तुम लोग LCM GCD अच्छे से निकालना जानते हो, मुझको ये बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये एक मेथड मैं तुम लोगों को यहाँ पे कह देता हूँ, जो मेथड से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है वो होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. Prime factorization method says that if A and B can be decomposed into some product of primes having this form, say n1 to the power alpha 1, n2 to the power alpha 2, np to the power alpha p, where n1, n2, np all are the prime factors, as well as beta 1, beta 2, beta p are the powers of n1, n2, np whenever we factorize b, where each ni are nothing but the prime factors, then GCD can be obtained by simply taking n1 to the power minimum of alpha 1 beta 1 into n2 to the power minimum of alpha 2 beta 2. Product will continue up to np to the power minimum of alpha p beta p. Similarly, LCM will be obtained by simply taking the maximum value of alpha 1 beta 1, alpha 2 beta 2 and alpha p beta p. Okay, so that is the technique which is known as the prime factorization method. And also we know that this is the formula, that is the product of two integers is nothing but the product of the LCM and GCD. So let us have a look to this problem. You can understand how I have solved this problem. It is a very easy problem, so I am not discussing here. The problem is already solved here. You can understand this one. So let us go to our main topic, that is the congruence. So congruence क्या होता है इसको अच्छे से समझना, ठीक है ना. यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम पे. Congruence है, let capital small m be a fixed positive integer. Two integers a and b are said to be congruent modulo m if a minus b is divisible by m, and we usually denote it by a congruent to b modulo m. That is the symbol. So what do you mean by congruence? Suppose हमारे पास एक m है एक fixed positive integer जिसको हम लोग change नहीं कर सकते हैं, और हम लोग क्या करेंगे, a को डिवाइड करेंगे m से और रिमाइंडर आएगा b, या फिर हम लोग कह सकते हैं m को अगर a माइनस b से डिवाइड करते हैं तो वो डिवाइड हो जाता है और उसका रिमाइंडर 0 आ जाता है. तो यही होता है कॉन्ग्रुएंस, ठीक है. तो a एक कोई भी इंटीजर है, उसको हम लोग m से डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर क्या आएगा, b आएगा. तो कॉन्ग्रुएंस एक्चुअली क्या देता है, हम लोग को रिमाइंडर देता है, ठीक है. So on the right hand side what we will write down, that is nothing but the remainder of the portion a when it is divided by m. एक दो एग्जांपल से हम लोग इसको समझ लेते हैं. जैसे हमारे पास है, सपोज a है 5 और मॉड्यूलो है 3, तो 3 से हम लोग को 5 को डिवाइड करना है. तो 3 से अगर 5 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ सकता है, इंटीजर, रिमाइंडर क्या होगा, 2 होगा. दूसरा एग्जाम्पल देखो, 17 है, उसको 5 से डिवाइड कर दिया तो रिमाइंडर क्या आ जाता है, 2 आ जाता है. अभी देखो 2 को कॉन्ग्रुएंट टू -3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ऑब्वियसली लिख सकते हैं. क्यों? क्योंकि यहाँ पे कहा है कि m विल डिवाइड a माइनस b. तो अगर 2 कॉन्ग्रुएंट टू -3 लिखते हैं तो 2 है हमारा a और b है इक्वल टू -3, तो a माइनस b क्या हो जाता है, 2 माइनस ऑफ -3, दैट इज 2 प्लस 3. सो 2 प्लस 3 इक्वल टू 5 इज ऑब्वियसली डिविजिबल बाई 5. तो यहाँ पे देखो 2 का हमारा नेगेटिव रिमाइंडर आ गया है विथ रिस्पेक्ट टू मॉड्यूलो 5. तो यहाँ से हम लोग क्या देख सकते हैं, कोई भी एक इंटीजर का एक पॉजिटिव रिमाइंडर या फिर उसका नेगेटिव रिमाइंडर हम लोग निकाल सकते हैं. तो 17 2 के साथ कॉन्ग्रुएंट था
और 2 माइनस 3 के साथ कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका मतलब 17 किसके साथ कॉन्ग्रुएंट होगा? माइनस 3 के साथ कॉन्ग्रुएंट होगा। बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज हम लोग को यहाँ पे दिखने को मिल रहा है। 17 किसके साथ कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा? माइनस 3 के साथ कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा अंडर द मॉड्यूलो 5। हाउ यू कैन सी दैट? let us verify it. Say a equal to 17, b equal to minus 3. So what will be a minus b? That is 17 minus of minus 3, that is 17 plus 3, that is equal to 20. So obviously 5 divides 20, so m is dividing a minus b. a minus b को अगर m डिवाइड करेगा तो भी चला जाएगा। तो 17 का दोनों रिमाइंडर मिलता है। अगर पॉजिटिव रिमाइंडर चाहिए तो वो होगा 2, अगर नेगेटिव रिमाइंडर चाहिए तो वो होगा माइनस 3। ठीक है, अभी चले जाते हैं उसके कुछ प्रॉपर्टीज पे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये पूरा टॉपिक मैं जो कहूंगा यहाँ पे सभी जगह पे ये एप्लीकेबल होगा। कोई भी इंटीजर खुद से कॉन्ग्रुएंट होता है अंडर एनी मॉड्यूलो m। a will be congruent to a under modulo m obviously, because a minus a equal to what? 0, and 0 is divisible by any positive integer, so a congruent to a by mod m। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं a के साथ रिलेटेड हो रहा है ना, और रिलेशन क्या है? कॉन्ग्रुएंस को अगर हम लोग रिलेशन पकड़ते हैं तो a के साथ रिलेशन में कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका मतलब a is related to a itself for all a, that means it is nothing but giving us reflexive property, that is the reflexive relation we have learned in the equivalence relation chapter. Also if you think a congruent to b under mod m, that means b congruent to a, obviously 2 congruent to minus 3 और minus 3 congruent to 2 दोनों बात सेम ही है, तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा। अभी देखो a अगर b के साथ कॉन्ग्रुएंट है, b अगर c के साथ कॉन्ग्रुएंट है, तो a c के साथ कॉन्ग्रुएंट होगा। यही मैंने तुम लोगों को कहा था। 17 2 के साथ था, 2 माइनस 3 के साथ है, तो 17 किसके साथ कॉन्ग्रुएंट हो रहा है? माइनस 3 के साथ कॉन्ग्रुएंट हो रहा है अंडर मॉड्यूलो 5, तो ये ट्रांजिटिव होता है। तो जो कॉन्ग्रुएंस ऑपरेशन है, तो कॉन्ग्रुएंस रिलेशन एक इक्विवेलेंस रिलेशन देता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एज वेल एज ट्रांजिटिव। Now go for the property number 4. It says that if a and b are two integers which are congruent modulo m, then you can choose any integer. For any integer you can choose whether it is positive, whether it is negative, a plus c congruent to b plus c under mod m, as well as a into c congruent to b into c mod m. तो इसका मतलब क्या होगा? a और b अगर congruent to each other है, then we can apply, we can add, we can subtract, we can multiply any other integer on both sides, the result will be remain same. Next property, property number 5 says that if a congruent to b under mod m and c congruent to d mod m, then ac will be congruent to bd as well as a plus c will be congruent to b plus d. Obviously this is also true. Okay, here I have not given the proofs of this properties, because of the fact that these are actually for coming for the short questions and these properties are applicable only to the problems. Okay, तो ये प्रॉब्लम जैसा एग्जाम पे नहीं दिया हुआ रहेगा, क्योंकि ये एक लाइन 2 लाइन का प्रूफ है, ये तुम लोग खुद से ही कर सकते हो, खुद से घर पे ट्राई करो तो ये सब प्रूफ तुम लोग खुद से कर सकते हो। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 6 को मैं यहाँ पे प्रूफ कर देता हूँ क्योंकि ये एग्जाम में आ चुका है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सभी जगह पे ये एप्लीकेबल होगा। देखो, a congruent to b अंडर मॉड m अगर होता है तो फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n, a टू दी पावर n विल बी congruent to b टू दी पावर n अंडर मॉड्यूलो m। सो a का कुछ भी पावर ले लो, b का कुछ भी पावर ले लो, सेम पावर होना चाहिए ऑब्वियसली, then they will be congruent to each other. So if a congruent to b under mod m, then a square congruent to b square, a cube congruent to b cube, a to the power n congruent to b to the power n. तो हम लोग यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से ये प्रूफ करेंगे। सो n इक्वल टू 1 के लिए तो ये स्टेटमेंट गिवन है, तो हमारा n इक्वल टू 1 के लिए क्या हो जाता है? a congruent to b given statement appearing, so the result is true. Now let the result is true for n equal to k. So a to the power k will be congruent to b to the power k. Now we know that a congruent to b under mod m and a to the power k congruent to b to the power k. So we can multiply a with a to the power k and b with b to the power k by the property number 5 that we have learned here. That is, if a is congruent to b and c is congruent to d, then a into c will be congruent to b into d, जिसको हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो उसको प्रॉपर्टी हम लोग अप्लाई किए हैं और ये क्या आ जाता है? a to the power k plus 1 congruent to b to the power k plus 1. Hence by principle of mathematical induction the result is true. तो यहाँ पे देखो, जो प्रॉब्लम है एक्चुअली ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि कोई जैसे टीसीएस या फिर सीटीएस या फिर कोई भी कंपनी का जो एग्जाम होता है
जहाँ पे हम लोग को एप्टीट्यूड टेस्ट देना पड़ता है, तो वहाँ पे ये सारा प्रॉब्लम आता है जनरली। तो और एग्जाम में तो आएगा ही आएगा। तो हम लोग कुछ प्रूफ्स कर देते हैं। जो जो प्रॉब्लम मैंने स्टार दिया हुआ है वो सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो सभी आ चुका है एग्जाम पे। मैं एक दो प्रॉब्लम तुम लोग को समझा देता हूँ और बाकी सभी प्रॉब्लम को तुम लोगों को समझना है। जो जो इंपॉर्टेंट है वह तुम लोग को समझा देता हूँ। देखो, पहला प्रॉब्लम ये है, बहुत ही आसान है, लेकिन मैं तुम लोग को समझा देता हूँ क्योंकि पहला प्रॉब्लम है। समझ लो, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 19 टू द पावर 20 इज डिविजिबल बाय 181। ओके, तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं कहा है, तुम कुछ भी निकाल सकते हो। मैं पॉजिटिव ही रिमाइंडर निकालूंगा सभी जगह पे जहां पे मुझको ये क्वेश्चन गिवन रहेगा, ठीक है ना। तो 19 टू द पावर 20 इज डिविजिबल बाय 121, ऐसा कोई प्रॉब्लम रहेगा तो कैसे हम लोग को सोचना है। 19 का कौन सा पावर 181 के कुछ मल्टीपल के करीब है, उसको सोचो। 19 का कौन सा पावर 181 के कुछ मल्टीपल के नियर है, उसको सोचना है, ठीक है ना। तो 19 स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाता है 361, और 181 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आ जाता है 362। तो 361 और 362 में डिफरेंस क्या है, 1 है डिफरेंस, ठीक है ना। तो 19 का जो स्क्वायर है वो 181 के मल्टीपल का नियर है, तो हम लोग क्या करेंगे, 19 के स्क्वायर लेंगे। तो 19 स्क्वायर विल बी इक्वल टू 361। अभी 361 को अगर 361 के साथ अगर हम लोग 1 ऐड करते हैं तभी जाके हम लोग को क्या मिलेगा, 181 का मल्टीपल मिलेगा। तो 181 का को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आ जाता है 362। तो 361 विल बी कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट, 361 will be congruent to -1, because 361 minus of -1, that is 361 plus 1 is equals to 362 is divisible by 181। तो 361 का अगर हम लोग डिवाइड करेंगे 181 से तो उसका नेगेटिव रिमाइंडर क्या आ जाता है, -1 आ जाता है। तो क्यों मैंने यहाँ पे नेगेटिव रिमाइंडर लिया है, क्योंकि ये -1 है, तो 1 या फिर -1 होगा तो हम लोग को कैलकुलेशन में बहुत आसान होगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे -1 लिया है, ठीक है ना। तो अभी है 19 स्क्वायर, तो स्क्वायर से हम लोग को 20 लाना है, तो स्क्वायर से 20 कैसे लाएंगे, सिंपली टू द पावर 10 ले लो, क्योंकि अभी हमने फॉर्मूला प्रूफ किया है, अगर a कॉन्ग्रुएंट टू b है देन a टू द पावर n विल बी कॉन्ग्रुएंट टू b टू द पावर n। सो 19 स्क्वायर होल टू द पावर 10 विल बी कॉन्ग्रुएंट टू -1 होल टू द पावर 10, दैट इज सिंपली इक्वल्स टू 1। तो व्हाट विल बी द रिमाइंडर, दैट इज इक्वल्स टू 1 whenever it is divided by 181, ठीक है। तो ऐसे ही सिमिलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम सेकंड में है, इसको मैं नहीं समझाता हूं, इसको तुम लोग समझ लो। चले आते हैं प्रॉब्लम नंबर 3 पे। प्रॉब्लम नंबर 3 देखो, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। यूजिंग थियोरी ऑफ कॉन्ग्रुएंस प्रूव दैट 7 डिवाइड्स दिस क्वांटिटी 2 टू द पावर 5n प्लस 3 प्लस 5 टू द पावर 2n प्लस 3। ऐसा कुछ प्रॉब्लम हम लोगों ने मैथमेटिकल इंडक्शन में प्रूफ किया है, ठीक है। अगर ये एग्जाम में अच्छे से क्वेश्चन को फॉलो करना, ये मैथमेटिकल इंडक्शन से अगर प्रूफ लेने करने को दिया है तो हम लोग को मैथमेटिकल इंडक्शन ही अप्लाई करना है। अदरवाइज इफ इट इज नॉट एनी गिवन दैट यू कैन अप्लाई मैथमेटिकल इंडक्शन और कॉन्ग्रुएंस, गो फॉर द कॉन्ग्रुएंस बिकॉज इट इज द इजीएस्ट वे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो 2 टू द पावर 5n प्लस 3 प्लस 5 टू द पावर 2n प्लस 3 को हम लोग ब्रेक कर लेते हैं। कैसे ब्रेक करेंगे, उसको सिंपली सिंप्लीफाई करेंगे। तो 2 टू द पावर 5n प्लस 3 प्लस 5 टू द पावर 2n प्लस 3 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 क्यूब इंटू 2 टू द पावर 5n 5 क्यूब इंटू 5 टू द पावर 2n। तो इसको जिसके पावर n है उसको हम लोग फिर से ब्रेक कर रहे हैं, 2 टू द पावर क्यूब तो 8 हो जाएगा, 2 टू द पावर 5 होल टू द पावर n और 5 क्यूब 5 स्क्वायर होल टू द पावर n। तो यहाँ पे क्या आ जाता है 32 टू द पावर n और यहाँ पे 25 टू द पावर n। अभी एक चीज देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिस टर्म से हम लोग को ये डिवाइड करना है जो है हमारा m, स्मॉल m का जो वैल्यू है, यहाँ पे स्मॉल m का वैल्यू क्या है 7 है ना। तो 7 जो है ना, तो वो देखना यहाँ पे जो n के लिए जो टर्म्स रहेगा उसका डिफरेंस या फिर उसका कुछ मल्टीपल हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो 32 और 25 का डिफरेंस कितना है, 7 है। तो इसका मतलब क्या होगा, 32 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आ सकता है 25, बिकॉज 32 माइनस 25 जब करेंगे तो वो क्या हो जाता है 7 हो जाता है, और 7 7 को क्या करता है डिवाइड कर देता है। तो 7m डिवाइड्स a माइनस b सेटिस्फाइंग। सो ऑब्वियसली फ्रॉम हियर वी विल स्टार्ट आवर प्रोसेस। सो 32 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो 25 रिमाइंडर हो सकता है, ठीक है। तो 32 माइनस 25 विल बी 7 which is divisible by 7। so a congruent to b है तो whole to the power n ले लो, तो क्या हो जाता है यहाँ पे 32 to the power n congruent to 25 to the power n अंडर मॉड्यूलो 7।
ठीक है। अभी देखो इसको देख के हम लोग को इसको सिंप्लीफाई लाना है, सिंपल इसको लाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो 32 टू दी पावर n के साथ 8 मल्टीप्लाई है, तो हमने यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड पे बाय द प्रॉपर्टी नंबर 4। तो 8 से बोथ साइड पे मल्टीप्लाई कर, सेम नंबर से बोथ साइड पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कॉन्ग्रुएंस नहीं चेंज होगा। उसके बाद क्या था, ये जो टर्म है इसके साथ एक और एक टर्म है 125 इंटू 25 होल टू दी पावर n प्लस देके टर्म है, इसको बोथ साइड पे ऐड कर दो। तो सेम टर्म को अगर बोथ साइड पे ऐड करते हैं तो भी क्या होता है, कॉन्ग्रुएंस सेम ही रहता है। तो बोथ साइड पे हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों टर्म को ऐड कर रहे हैं। ऐड करने के बाद क्या होता है, देखो लेफ्ट हैंड साइड पे जो टर्म है वो तो गिवन टर्म हो गया, 2 टू दी पावर 5n प्लस 3 प्लस 5 टू दी पावर 2n प्लस 3, लेफ्ट हैंड साइड पे जो है वो कम बैक करके आ चुका है। और राइट हैंड साइड पे जो है यहाँ पे 25 होल टू दी पावर n अगर कॉमन ले लेता है तो 8 प्लस 125 क्या हो जाता है, 133। तो 133 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि 133 7 का मल्टीपल है, तो रिमाइंडर क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। तो अभी सोचो, एक है इंटीजर, फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर, जिससे हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पे कोई भी एक इंटीजर है जिसको डिवाइड कर रहे हैं और रिमाइंडर है 0, तो इसका मतलब क्या हो गया, 7 किसको डिवाइड कर देगा, इसको डिवाइड कर देगा, रिमाइंडर तो 0 है, ठीक है, तो 7 इसको डिवाइड कर देता है। दैट इज द टेक्निक बाय यूजिंग द कॉन्ग्रुएंस। दिस इज वेरी वेरी इजी विदाउट यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ऐसे ही दूसरा भी मैंने किया है, ये दोनों ही प्रॉब्लम एग्जाम में आ चुका है, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, इसको देख लो और खुद से सॉल्व करो। ऐसा कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पे, देखो प्रॉब्लम नंबर 5 में तुम लोगों को समझा देता हूँ, एक आसान सा प्रॉब्लम है लेकिन एग्जाम में दिक्कत होता है। सपोज वी हैव टू फाइंड आउट द लीस्ट पॉजिटिव रिमाइंडर व्हेन 11 टू द पावर 35 इज डिविजिबल बाय 13। तो यहाँ पे अभी तक मैंने जो प्रॉब्लम किया है उसका पावर्स था इवन, लेकिन यहाँ पे पावर देखो ऑड नंबर है, 35 है, तो कैसे करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं 11 से, ठीक है ना। तो 11 will be congruent to -2 under modulo 13 because 11 minus of -2 that is plus 13 is obviously divisible by 13। तो 11 congruent to -2 है, स्क्वायर करके करके जाओ, तो ये मैं स्क्वायर कर रहा था और स्क्वायर करने के यहाँ पे -2 का स्क्वायर करके 4 आएगा, ठीक है। अभी स्क्वायर कर दो, 4 का स्क्वायर कितना है 16, 16 को 13 से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या होता है 3। तो यहाँ पे मैंने जो लिखा है, मैंने रिमाइंडर को ही लिखा है, ठीक है ना, मैंने स्टेप जंप किया है यहाँ पे, ऐसे भी तुम कर सकते हो, तो मैं समझा देता हूँ। तो 11 स्क्वायर करेंगे तो इसका होल स्क्वायर होगा, वो होगा 4, 4 13 से छोटा है तो रिमाइंडर निकालने की कोई जरूरत नहीं है। जब 13 को क्रॉस कर जाएगा तभी जाके हम लोग रिमाइंडर निकालेंगे, ठीक है, अच्छे से समझ लो। जब भी ये स्क्वायर या फिर क्यूब करने के बाद ये 13 को जो एम है, एम को क्रॉस कर जाता है, तभी जाके हम लोग क्या करेंगे, एम से इस नंबर को डिवाइड कर देंगे और उसका रिमाइंडर निकालेंगे, ठीक है। अभी स्क्वायर था, अभी फिर से स्क्वायर कर दो, 11 टू द पावर 4 आ जाता है, 4 स्क्वायर कितना होगा 16, 16 को अगर 13 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या होता है 3, तो 3 को मैंने यहाँ पे निकाला है। फिर से स्क्वायर कर दो, ये होता है 3 स्क्वायर 9, तो 9 से 13 से छोटा है तो रिमाइंडर निकालने की कोई जरूरत नहीं है। फिर से स्क्वायर कर दो, 9 स्क्वायर क्या होगा 81, तो 81 तो 13 से ज्यादा हो गया, 81 जब भी 13 से ज्यादा होता है 13 से 81 को डिवाइड कर दो, रिमाइंडर क्या होगा 3 होगा। फिर से स्क्वायर कर दो, यहाँ पे 9 आ जाता है। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे 32 तक हम लोग ला सकते हैं, लेकिन यहाँ पे है 35, तो 35 कैसे लिखेंगे, 35 को लिख सकते हैं 11 टू द पावर 32 इंटू 11 स्क्वायर इंटू 11 लिख सकते हैं हम लोग ऐसे, 11 टू द पावर 35। तो 11 टू द पावर 35 क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिमाइंडर है 9, 11 स्क्वायर का रिमाइंडर क्या था 4 था और 11 का रिमाइंडर क्या था -2 था, तो 11 टू द पावर 35 क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे रहेगा, और ये तीनों का रिमाइंडर हम लोग यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे -2 है, इसको मल्टीप्लाई कर दो, आ जाता है -72। अभी -72 को अगर 13 से डिवाइड करेंगे तो उसका पॉजिटिव रिमाइंडर हम लोग को चाहिए, यहाँ पे पॉजिटिव कहा था, ठीक है। तो -72 कॉन्ग्रुएंट टू 6 होता है, क्योंकि -72 माइनस ऑफ 6 करेंगे तो क्या होगा -78, -78 तो 13 से डिवाइड हो जाता है, तो लिस्ट पॉजिटिव रेसिड्यू क्या हो जाएगा +6। सो दैट इज द टेक्निक, ओके। प्रॉब्लम नंबर 6 इज one of the important problem also, that is the similar type of problem. I think you can understand very easily. I have solved this by general way and step by step. I have taken no step jump here, so you can really understand. So let us go to the next type of problem, problem number 7. ये बहुत ही एक आसान सा प्रॉब्लम है, लेकिन देखो कितना इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट अप टू 100 फैक्टोरियल इज डिवाइडेड बाय 18, ठीक है। तो इस टाइप ऑफ प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे।
अगर 1 प्लस 2 प्लस अप टू 100 रहता तो हम लोग n इंटू एन प्लस 1/2 कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तो हर एक टर्म फैक्टोरियल है। तो फैक्टोरियल का मतलब क्या हो जाता है, n इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू ऐसे करके अप टू 1 तक प्रोडक्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो फैक्टोरियल तो 2 फैक्टोरियल मतलब 2 है, लेकिन 3 फैक्टोरियल तो 6 होगा, ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे ऐड करेंगे, ऐड करने की कोई जरूरत ही नहीं है। ये जो फिगर दिया हुआ है ये 1000 तक भी दिया हुआ सकता है, लेकिन ये फेक डेटा है। तुम लोगों को घबराने के लिए ये डेटा दिया हुआ रहता है। प्रॉब्लम 2 लाइन का है, चुटकी में हो जाता है। देखो कैसे होगा, यहाँ पे 18 से डिवाइड करना है, ठीक है ना। तो 18 से अगर हम लोग डिवाइड करना चाहते हैं तो 18 कौन सा फैक्टोरियल के अंदर आता है ये सोचो। 1 फैक्टोरियल के अंदर 18 नहीं है, 2 फैक्टोरियल के अंदर नहीं है, 3 फैक्टोरियल का वैल्यू है 6, 4 फैक्टोरियल का वैल्यू है 24, 5 फैक्टोरियल का वैल्यू है 120। तो 5 फैक्टोरियल तक भी 18 नहीं आता है। जब अगर 6 फैक्टोरियल निकालेंगे तो वहां पे देखो 6 इंटू 3 एक टर्म आएगा, 6 इंटू 3 तो वहां पे 18 आ जाता है। तो 6 फैक्टोरियल को अगर 18 से डिवाइड करेंगे तो वो वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अभी 6 फैक्टोरियल का वैल्यू अगर 0 है अंडर मॉड्यूलो ऑपरेटर ऑफ 18, देन 6 प्लस n, कोई भी n ऐड कर दो। 7 फैक्टोरियल के अंदर भी क्या रहेगा, 18 रहेगा। 8 फैक्टोरियल के अंदर भी क्या रहेगा, 18 रहेगा, क्योंकि 6 और 3 तो प्रेजेंट रहेगा उसके अंदर, ठीक है ना। तो 6 प्लस n फॉर एनी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर दिस फैक्टोरियल विल बी ऑटोमेटिकली 0। तो 6 फैक्टोरियल से लेके 100 फैक्टोरियल तक या फिर इनफाइनाइट नंबर ऑफ फैक्टोरियल तक उस सभी का वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है अंडर मॉड्यूलो 18। समझ में आ गया, आसान हो गया ना। तो यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने लिखा है, और राइट हैंड साइड पे कितना दूर तक हम लोग ले सकते हैं, मैक्सिमम 5 फैक्टोरियल। उसके बाद तो 6 फैक्टोरियल से 0 आ जाता है, इसको कैलकुलेट करो, डिवाइड कर दो, 153 आ जाता है, डिवाइड करने पे 9 आ जाता है। दैट इज द सॉल्यूशन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दोनों प्रॉब्लम मैंने किया है, और इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। ये भी बहुत ही आसान सा प्रॉब्लम है, 1-2 लाइन का प्रॉब्लम है, दे सकते हो, लेकिन 5 मार्क्स का प्रॉब्लम है, ठीक है। कितना आसान है प्रॉब्लम तुम लोग समझ सकते हो। नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 9, और ये मेरा लास्ट प्रॉब्लम है आज के लिए। मैं तुम लोगों को समझा देता हूँ। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 2 टू द पावर 100। ऐसा भी प्रॉब्लम दिया हुआ रहता है, 3 टू द पावर 100, 3 टू द पावर 99, ऐसा करके कोई भी प्रॉब्लम रहेगा तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। हम लोग को यूनिट डिजिट ढूंढना है। तो कोई भी एक नंबर का यूनिट डिजिट हम लोग को कैसे मिलता है, उस नंबर को 10 से डिवाइड करते हैं, और जो रिमाइंडर रहता है वही होता है यूनिट डिजिट। जैसे 12, 12 को अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या होगा, 2 होगा, रिमाइंडर 2 आएगा। अगर हमारे पास है 102, तो 102 को 10 से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर क्या आता है, 2 आता है, तो उसका यूनिट डिजिट क्या होता है, 2 होता है। तो 2 टू दी पावर 100 जो है उसका यूनिट डिजिट हम लोग को निकालना है, तो सिंपली उसको किससे डिवाइड करना है, 10 से डिवाइड करना है। यही है हमारा प्रोसेस, और प्रोसेस तो तुम लोग जानते हो, मैंने प्रोसेस को करके करके यहाँ पे किया है। तो अभी क्या करना है, 10 का जो मल्टीपल है 2 टू दी पावर, मैंने 2 का कौन सा मल्टीपल है जो 10 के मल्टीपल के करीब आएगा, ठीक है। तो 2 टू दी पावर 4 कर देते हैं, तो क्या होगा वो, 2 टू दी पावर 4 इक्वल टू 2 टू 2 स्क्वायर 4, 4 4 इंटू 4 दैट इज 16। तो 2 टू दी पावर 4 को अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाता है, 6 आ जाता है, ठीक है। तो 2 टू दी पावर 8 करेंगे, 6 इंटू 6 क्या होगा, 36 होगा। 36 को 10 से डिवाइड करो, फिर से 6 आएगा, और ये 6 ही आता रहेगा, 96 तक 6 आएगा। तो 2 टू दी पावर 96 तक इसका 6 वैल्यू है, और 2 टू दी पावर 4 का भी वैल्यू है 6। तो इस दोनों को प्रोडक्ट कर दो, तो ये क्या आ जाता है, फिर से 6 इंटू 6 आएगा, 6 इंटू 6 मीन्स 36, 36 को 10 से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या आ जाता है, 6 आ जाता है। तो इसका मतलब 2 टू दी पावर 100 का जो यूनिट डिजिट होगा वो होगा 6, ठीक है। तो ये हो गया मेरा कॉन्ग्रुएंस का प्रॉब्लम, और एक चैप्टर बाकी है, और एक टॉपिक स्मॉल टॉपिक बाकी है, उससे मेरा नंबर थ्योरी खत्म हो जाएगा, ठीक है। सो अगर if you like this video, then subscribe the channel and don't forget to share with all of your friends.